آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ایک تاریخی دن ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین کو یاد کر رہے ہیں، ان احباب کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے ادب، سیاست، ٹریڈ یونین، اسٹوڈنٹ یونین میں ریڈیکل فیکٹر ادا کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہم انہی کی لڑائی بنگیاری ہے، اور اس بنگیاری کا جو ہراول دستہ ہے وہ ہمارے اسٹیج پہ موجود ہے، اور اس ہراول دستے کی جو جڑیں جہاں پہ ہیں وہ اس وقت حسین نقوی صاحب کے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے سینئر، آپ سب تعظیماً میں درخواست کروں گا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، جناب حسین نقوی آپ کو بتا دیں۔ بند کر کے ایک بار چلا کے ساتھیوں، خواتین و حضرات، سب باتیں تو ہو گئی ہیں، سب کو متعلق ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹے سنا دیتے ہیں مختلف۔ اب یہاں سب سے پہلے ہمارے اور میرے دوست ساتھی الطاف قریشی کا ذکر ہوا ہے۔ الطاف قریشی خاکسار تھے اور آخر تک خاکسار رہے، اور خاکسار تنظیم سے ان کا تعلق پہلے تھا اور آخر میں وہ مطلب عوام کے خاکسار ہیں۔ تنظیم سے تعلق کا الطاف نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ بہت متاثر تھے علامہ مشتقی یہ خیالات سے، ان کی ظاہر تقریریں سنتے تھے، تحریریں پڑھتے تھے، تو اور رہتے وہ اسی علاقے میں تھے قریب، تو انہوں نے بتایا کہ میں علامہ کے پاس گیا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اچھا تم میرے سیکریٹری بن گئے، یعنی سیکریٹری، پرائیویٹ سیکریٹری علامہ مشتقی کے ہو گئے۔ اور علامہ مشتقی نے ایک پرانی سائیکل نکالی جو انتہائی زنگآلود تھی، اور ایک تسلا نکالا اور اس میں کڑوا یہ مٹی کا تیل ڈالا اور کہا کہ اس سائیکل کو کھولو اور اس کے سب پرزے جو ہے اس میں ڈبو، اس کو صاف کرو اور اس کو دوبارہ سے مطلب پھر ریفٹ کر لو، اور اس کے بعد یہ تمہاری سواری ہے بطور پرائیویٹ سیکریٹری ٹو علامہ مشتقی۔ مطلب ہم لوگوں نے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہے اس کا ذرا اندازہ کریں۔ بہرحال اس نے یہ کیا، اور البتہ یہ کہ وہ پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے کہ وہ سائیکل چل پائی یا نہیں چل پائی، لیکن بہرحال یہ کام کیا الطاف نے۔ الطاف قریشی، پھر جو دوسری چیز مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس نے سن 70 میں کنٹری وائڈ، اس وقت ابھی مشرقی پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا، تو دونوں علاقوں میں اس وقت پھر صوبے بن گئے تھے دوبارہ سے، لیکن بعد میں بنے، یعنی یحییٰ خان کے بعد میں، تو انہوں نے اس وقت مشرق میں ہمارے جماعت اسلامی طاقت میں تھی، اور انصاری صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، حالانکہ وہ پی ایف یو جے سے نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو ہڑتال کو توڑنے کی کوشش کی۔ تو ایک اکیلا فرد جو مشرق
को में रहते हुए उसको छोड़ के यूनियन की स्ट्राइक में शामिल हुआ, वो अल्ताफ अकेले। फिर आप देखें कि ये हुआ, मसावात निकला। अब मसावात जो था, मसावात से पहले ये हमारे हनीफ रामे साहब जो थे, उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि हमें अपना रिसाला वो निकालते थे, आपने देखा होगा शायद, 4 आने का था, फिर 1 रुपए का था, जिसमें हम लोगों ने लिखना शुरू किया था नुसरत, और मुझे 25 रुपए महीने के मिलते भी थे उसमें लिखने के। तो नुसरत के साथ साथ ये हुआ कि हनीफ रामे साहब को ये ख्याल आया कि अब पीपल्स पार्टी बन रही थी, तो उन्होंने नुसरत का एक इस्लामी सोशलिज्म नंबर निकाला, और इस्लामी सोशलिज्म नंबर निकालने वालों में ज़ाहिर सफदर मीर साहब का भी हिस्सा था। सफदर मीर साहब जो थे, वो सफदर मीर साहब असल में इस गुनाह के वो है कि उन्होंने मुझे मतलब एडिटर के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया पंजाब टाइम्स में, और फिर पंजाब पंच वगैरह में किया। लेकिन सफदर मीर साहब ने कहा कि इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि किस तरीके से निकलेगा। तो डॉक्टर मुबशिर साहब के घर में जो उनका हिस्सा था आगे, उसके बैठ पे हम लोग जमा होते थे, और 3-4 लोग उसमें वो भी थे, और सफदर मीर साहब थे, डॉक्टर मुबशिर थे, जाहिर चौधरी साहब कभी कभी उसमें शामिल होते थे। और लेकिन ये कि एक और साहब भी थे जो मेरा ख्याल है कि जाहिर चौधरी साहब के साथ हैं, नहीं खुर्शीद आलम साहब नहीं, एक जो वकील भी बने और वजीर भी बने, वो भी तो थे इस प्रोजेक्ट में। असगर खादिम भी तो आते थे। नहीं, असगर खादिम तो इसमें थे, नैब वगैरह। क्या नाम था उनका जो, नहीं, दिलावर महमूद के अलावा जो बिल्कुल ही जब आप ये गुलबर्ग से बाहर निकले, नहर के करीब आए, तो उसमें रहते थे। वो बहरहाल एक बड़े वकील थे और सरकारी आदमी थे, लेकिन जाहिर चौधरी साहब के प्रोजेक्ट में जिन लोगों का फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन था, उसमें वो भी शामिल थे। अच्छा, अब जाहिर चौधरी साहब का अजीब दिलचस्प बात थी कि जाहिर चौधरी साहब इंतहाई उर्दू स्पीकिंग लोगों के ख़िलाफ़ थे, और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इन लोगों जितने भी उनके साथ शामिल हुए लोग, उनमें हसन जाफ़र या वो और मैं भी, जिसको जिस दिन भी वो अच्छा कुछ पकाते थे तो वो पीटीआई के दफ्तर में नीचे आते थे और किसी न किसी को ऊपर भिजवाते थे और कहते थे उस सेक्रेटरी को बुलाओ। तो नीचे मैं जाता था तो कहते थे आज ये पकाया है तो आज तुमने ज़रूर आना है। ये लोग तो मेरा ख्याल है कि उनके आखिरी हिस्से में जाहिर चौधरी के, जब उनकी आंखें भी ख़त्म हो गई थी, हज़ारों किताबें पढ़ी उन्होंने बिला मुबालगा। 2 ही आदमी हैं ऐसे जिनका मुझे पता है कि जिन्होंने हज़ारों किताबें पढ़ी। एक उसमें से जाहिर चौधरी साहब थे और दूसरे शब्बर जैदी हैं जो कराची में FBR का चेयरमैन रहा है, जिसकी अपनी पर्सनल स्टडी में 1 लाख किताब है और जिसके दोनों तरफ 20-25 किताबें रहती हैं। तो ये कुछ नहीं बिगड़ा और कुछ नहीं बिगड़ा उनका। उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा, बहुत कुछ बिगाड़ा। और उन्होंने पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने
इस बात को यानी लोगों तक पहुंचाया कि तमाम जनरल्स जो हैं उनकी हुकूमतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उन्होंने, सारी हुकूमतों ने। ये शब्बर ज़ैदी का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हर एक के साथ वो शामिल रहे और हर एक का उन्होंने राज अफशा किया। ये भी है। अच्छा, ये देखिए, अल्ताफ़ कुरैशी की बात हो रही थी, तो अल्ताफ़ कुरैशी ने फिर मसावात में, मतलब हम लोगों ने बैठ के ये सारी वो बनाई। अब आप ज़रा देखें कि डॉक्टर अब हयात तो नहीं है ना, डॉक्टर मुबशिर साहब जिंदा हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो भुट्टो साहब ने मुझसे पूछा कि ये पब्लिशर तो रहा है और इसने वो भी निकाला रिसाला, तो क्या इसको मैं 10 लाख रुपए दूँ? एक डेली अखबार का इन्होंने डिक्लेरेशन अप्लाई कर दिया, और इन्हें, क्योंकि ये ऐसे रहमान साहब के बहुत करीब थे, उन्होंने तकरीबन ऐसे रहमान साहब को अल्लाह ताला नहीं तो मतलब नबी अकरम का दर्जा ज़रूर दिया। तो उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ ज़रूर दें, क्योंकि इनको डिक्लेरेशन मिल गया। क्योंकि उस वक्त डिक्लेरेशन नहीं मिलता था, डिक्लेरेशन मिलता था नानियों को, डिक्लेरेशन मिलता था बढ़इयों को, और वो डिक्लेरेशन जो थे वो सियासी रिश्वत के तौर पर दिए जाते थे बीडी मेंबरों को, और वो बेचते थे। यानी हमने, अब खैर वो तो आज़ाद अखबार था, वो तो उसका तो बाकायदा डिक्लेरेशन था, जो हमने जब रहमान साहब ये लोग बेरोज़गार हुए और निकाला गया आज़ाद, तो 5,000 रुपये में मैंने वो डील कराई थी। और वो भरोसा ही करते थे आज़ाद के जो मालिक थे, तो उस वक्त उनके वालिद ने निकाला था। बहरहाल वो तो तहरीक वो जो थी, मतलब जो इंतहा पसंद मुसलमानों की तहरीक है, उसके रोकते तहरीक अहले हदीस में से थी, उनके पास था डिक्लेरेशन। बहरहाल उस इनको चूँकि डिक्लेरेशन मिल गया, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि 5-5 लाख रुपए भुट्टो साहब ने सारे जो प्रोविंशियल चीफ्स थे उनसे भी दिया, और मसावात निकला, और उसमें जाहिर है कि यानी शौकत तनवीर मिर्ज़ा मनु भाई पिंडी से आया उसकी चीफ रिपोर्टरी करने के लिए। अल्ताफ़ कुरैशी नाइट शिफ्ट के इंचार्ज थे, जिसको एक्चुअली न्यूज़ का पता था और किस तरीके से न्यूज़ का प्लेसमेंट किया जाए। तो अल्ताफ़ उसमें ज़ाहिर है कि काफ़ी उनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, माहिर थे वो इसके, और उन्होंने बहुत ही, आप समझिए कि जिस दिन शाया हुआ है मसावात, उस दिन उसकी कोई कॉपी नहीं बची थी, उसकी कोई कॉपी उस वक्त नहीं बची थी जब मसावात शाया हुआ है। और जाहिर है वो उसने एक लिहाज से पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाने का काफ़ी मतलब उसका कंट्रीब्यूशन है, और उसमें इन लोगों का सभी का कंट्रीब्यूशन है। वो एक काम हुआ। लड्डू साहब के मुतालिक यहाँ पे खालिद महबूब के मुतालिक बात हुई। खालिद महबूब मैं समझता हूँ कि इंतहाई जिसको कहते हैं ना कि कमिटेड एक वर्कर थे, बेसिकली एक्टिविस्ट और वर्कर थे। मशक्क़ती थे, और जो अफसोस है मुझे वो इस बात का है, और मतलब हसन जाफ़र शायद इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि डॉक्टर मुबशिर के पास बेशुमार मटीरियल था जिसको उन्होंने खालिद महबूब के हवाले वो कर रहे थे कि वो इससे मतलब बनाए बहुत सारी किताबें।
क्योंकि उनका ये उनको आता था इन लोगों के साथ। ये तो वो मशक्क़ती थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि वापडा में नौकरी कम थी और मेरा ख्याल है ये वहाँ से भाग के आते थे जाहिद चौधरी साहब के, और ये लोग उनको पढ़ के ये और खालिद महबूब उनको पढ़ के सुनाते थे जाहिद चौधरी साहब को, और जाहिद चौधरी साहब जो थे वो फिर उसको बोलते थे और फिर ये लोग लिखते थे, फिर वो इसकी तस्हीह करते थे और उस तरीके से ये जो 10-12 जिल्दें हैं और जिसको इन्होंने यहाँ पे इसमें शाया किया है। तो ये एक बड़ी मशक्क़त थी, लेकिन मुझे इस बात से मेरा ये ख्याल है कि वो एक हर ज़माने में जब एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, सियासी तहरीक बुनियाद होती है, मैं समझता हूँ ऐसी तमाम तहरीकों की, जिसमें आप देखिए कि इसके बावजूद कि हमारा इख्तिलाफ राय रहा इन लोगों से, इन्होंने भी जिक्र किया है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ से जब डॉक्टर अजीज़ुल हक मतलब मुक्के मारता था और भुट्टो की हर मेज पे, हाँ, और भुट्टो की हर गलत कार्यों को बाकायदा सेलिब्रेट करता था वो इस टाइप का, और बहुत ही आलिम मतलब लोग थे ये उस ज़माने में। तो तहरीकें जो होती हैं उनकी बुनियाद, तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद भी मैं समझता हूँ सियासी थी, और इस तहरीक की जो सन 70 में हुई इसकी भी थी, जिसका सबसे ख़राब नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में इक़्तिदार जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता था उसको हवाले नहीं किया गया। और मेरा ख्याल है कि लाहौर में जो तकरीर की शेख मुजीब ने, जहाँ अब वो बना उसको, अब मेरा ख्याल है इनको मेरी तहरीर का पता चल गया था, तो इन्होंने उसको खुदवा के उसके अंदर वो बना रहे प्लाज़ा। ये तो एक सियासी जलसों के 2-3 ही जगह थी, मोची दरवाजे में ट्रकें खड़ी कर दी थी, आप देखिए, और जो बाग़े जिना है उसका क्या असर किया है इन्होंने, और जो यानी जहाँ मीनारे पाकिस्तान बना उसका क्या असर किया है, इन सब जगहों को ख़राब करने। तो अब ये यहाँ पर शेख मुजीब ने वो तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखो, और हमने रिपोर्ट भी किया था, एक शायद एक आध पैराग्राफ उसका छपा भी था किसी न किसी अखबार में, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है जो छपा था। तो उसमें शेख मुजीब ने कहा कि देखिए, हम इलेक्ट होंगे, हमें इन सन 47 से लेके 70 में किसी चीज़ में कोड कुछ नहीं दिया गया। कराची में कैपिटल बना ढाका के बजाय, ढाका में पहला इजलास हुआ। कराची उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं दिया, ना हमारा सबसे अच्छा फोर्ट था क्या नाम है, चिटागोंग, उसमें उसके बजाय कराची पोर्ट को वो किया गया, जो उस लिहाज से उतना अच्छा पोर्ट नहीं था डिफेंस के लिहाज से। और उन्होंने कहा कि अब ये होगा कि जब तक के 56% सिविल सर्वेंट और ब्यूरो ये जो फौजी अफसर हैं, गजेटेड अफसर, जब तक 56% नहीं जो हो जाएंगे उस वक्त तक 2% सिर्फ बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले थे लोग, बाकी सब इधर ही से। अम्बेडकर ने तो बता भी दिया था कि चलो भाई इनको एक मुल्क दे दो, और उसकी नज़र में मुल्क मगरबी पाकिस्तान था, जिसको यानी पंजाब था। उसने कहा जहाँ की फ़ौज को एक मुल्क दे दो, तो फ़ौज का मुल्क जो है वो दिलवाया है अम्बेडकर ने, जो पंडित नेहरू को कहा कि इस पे ज़िद नहीं करो, और ये देखो लिखा भी है अम्बेडकर की, अगर आप किताब पढ़ें या उनकी तहरीरें तो आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि अब जब तक ये हो, तो मैं भुट्टो साहब फ्लैटीज़ होटल में ठहरते थे, और जब तक वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बने
उस वक्त तक मुझे उनके बेडरूम में एंट्री की बगैर इजाज़त के, यानी डॉक्टर उनके पास तो चौधरी साहब के पास तो हमेशा इजाज़त रही, लेकिन उस वक्त तक वहाँ जाने की इजाज़त थी। तो मैंने उनको जाके मुबारकबाद दी कि आपका काम, कहने लगे कि मेरा काम, मैं कहा हाँ आपका काम शेख मुजीब कर गए। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, मेरे खिलाफ तकरीरें की उसने। तो मैंने कहा कि भाई उसने ये कहा है कि जब तक यानी अगर ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसर ग्रेड 17 के कम से कम 25 साल तो लगेंगे कि 25 साल तक मशरक़ी पाकिस्तान से रिक्रूट होंगे, उस वक्त तक यहाँ से कोई नहीं होगा। तो अब ये होगा कि अब आपकी सपोर्ट पहले तो ज़रा इनडायरेक्ट थी, हालांकि रिजवी साहब रोज़ भुट्टो साहब से मिलने आते थे और 2-3 घंटे उनकी खिदमत में रहते थे और उनको मशवरे भी देते थे, और भी लोग आते थे। लेकिन रिजवी साहब क्योंकि अलग आते थे जो यहाँ CID के थे और बड़े माहिर थे, और हबीब सदोज़ई ये लोग आते थे। तो मैंने कहा कि अब ऐसा होगा कि यानी आपको इख्तिदार भी मिल जाएगा, क्योंकि अब आपके साथ ये दोनों भी गिरोह जो है गजेटेड अफसर फौज के और गजेटेड अफसर सिविल सर्विस के, ये दोनों आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो कुछ वो मैंने कहा लेकिन अलबत्ता, तो उनका अलबत्ता भी बता दो। मैंने कहा अलबत्ता पाकिस्तान टूट जाएगा। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इस साल मुझे इख्तिदार दिला दो, हालांकि कोई उनका हक नहीं था इख्तिदार पे, तो पाकिस्तान बच जाएगा। इत्तेफाक से 20 दिसंबर को उनको मिल गया, तो अब मेरी तो एक्सेस नहीं थी, लेकिन हनीफ रामे को मैंने कहा कि अपने साहब से बोलो कि आपको इख्तिदार मिल गया और पाकिस्तान नहीं रहा। तो ये सब वाक़यात भी हुए हैं पाकिस्तान के साथ, और ये सब हम लोगों की याददाश्त में है। अब मसला ये है कि आगे क्या होना चाहिए। असल मसला यही होता है। असल मसला ये है कि जैसे उस वक्त कोई सियासी तहरीक नहीं थी और तरक्की पसंद तहरीक थी, उसने प्रोग्रेसिव राइटर्स को वो किया। सन 70 की सियासी तहरीक थी, उसने बहुत सारे राइटर्स, उसमें अलबी असलम गुरदासपुरी की किताब कल आने वाली है मेरा ख्याल, तो वो उससे भी आपको पता होगा कि कितने शायर अदीब ये सब लोग उस ज़माने में निकले, वो भी जो उसके हक़ में थे उस तहरीक की, और वो भी जो उसके हक़ में नहीं थे, जैसे हमारे यहाँ पे बैठने वाले। हालांकि उसमें से शोहरत बुखारी साहब तो बहुत बाकायदगी से पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हो गए, और उनकी बेगम तो उसकी लीडरों में शामिल हुई और बेटी भी उनकी रही उसमें। तो अब यह है कि यहाँ पर से ही ऐसी जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो तहरीक है वो बग़ैर आपकी और सियासी वर्करों की, हालांकि उसमें से एक हिस्सा ज़ियाउल हक ने निकाल दिया। ज़ियाउल हक को जब उन्होंने हमें किले में भेजा और उसके बेसमेंट में भी गए हम, जहाँ हसन नासिर शहीद को शहीद किया गया, तो वहाँ पर हमें पता चला कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं उन्होंने मुझे यहाँ क्यों लाया गया, उन्होंने कहा कि आपने बिटवीन दी लाइंस में मतलब ये लिखवा दिया है मज़हर साहब से कि सहाफ़ियों की अंजुमन, स्टूडेंट्स यूनियन और मतलब ये जो लेबर वर्कर्स हैं, ये अगर इकट्ठा हो जाएं तो फिर तब्दीली आने में, पॉलिटिकल तब्दीली आने में आसानी होती है और पॉलिटिकल तब्दीली आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो नुस्खा आपने अंदर लिख दिया है, तो इसमें से हम ये मुझे वादा किया था ये गिलानी ने कि मैं यूनियंस बहाल करा दूंगा, और उसने असेंबली में बयान भी दिया था। लेकिन मैंने कहा अगर करा दोगे तो उसके बाद वज़ीर आज़म नहीं रहोगे, तो उसने वज़ीर आज़म रहना
कबूल किया और यूनियन नहीं बहाई, स्टूडेंट यूनियन, और वजीर आजम भी नहीं रहा। ये सब लोगों के साथ हुआ। भुट्टो साहब शहादत की उसके ऊपर फायज हो गए, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ कि उनको शहीद किया गया, वरना जो भुट्टो ने काम किया था वो भी लोग भूल जाते। भुट्टो ने बहरहाल एक बुनियादी काम किया था। मैं यहाँ से करीब 30-40 मील दूर तक गांव में जाता था मुख्तलिफ ये मालूमात करने। तो मैं एक मरतबा गया तो एक गांव में मैंने पूछा लोगों से, जब बैठे हम वहाँ, तो मैंने कहा आप लोगों को भुट्टो में क्या पसंद आ रहा है। भुट्टो साहब के साथ ही जाते थे, लेकिन वो सियासी जलसे करते थे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा ये हुआ है कि जो हमारा मालिक है ज़मीन का वो हमारे साथ आके चारपाई पे बैठा है, तो इसलिए हम भुट्टो के सपोर्टर हैं। और ये उसमें आप यानी ये सही था कि उसने जो आम आदमी था उसको एक अवेकन किया, और ये बहुत बड़ा काम है। ये महात्मा गांधी से कम काम नहीं है, उन्होंने भी अवेकन किया था। उसका ज़ाहिर हजम बहुत बड़ा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काम बहरहाल भुट्टो ने हमारे इलाके में किया। जैसे शेख मजूद ने बयान किया था, बाद में जब वो इक़्तिदार में आ गए 3-4 बार मैं गया था, उसमें पहली मर्तबा तो मुजीब भुट्टो के टॉक्स में ही गया था मैं, और उसने पहचान लिया था कि मैंने उसके ख़िलाफ़ लिखा। तो मैं कहा भुट्टो साहब भी वहीं थे, तो मैं कहा इनके ख़िलाफ़ भी लिखा है, हालांकि मेरा ख़िलाफ़ का मसला नहीं है। मेरा तो यह है कि हमारे आप लोग इक़्तिदार में तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सब वादे भूल जाते हैं जो आप करते हैं अवाम के साथ। तो आप दोनों ही से हमारा इख्तिलाफ हो गया है कि उन वादों को याद रखना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है काफ़ी मैंने काफ़ी हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने तमाम मुकर्रीन प्रोफेसर कमर अब्बास साहब, हमारे और नकी साहब को शुक्रगुजार हैं, और तमाम मुकर्रीन डॉक्टर भुट्टा साहब, मेरा ज़ैनुल आबिदीन, नाबिद शाह, नाबिद फ़ुक़ाहा, जमशेद इमाम, डॉक्टर अशरफ निज़ामी, और ख़ुसूसी तौर पर अहमद जवाद कुरैशी और अली आबिद साहब को शुक्रगुजार हैं कि वो आया, उन्होंने तकरीब में हिस्सा लिया और हमसे अपनी यादें शेयर की। अब इजलास का बाकायदा काम किया जाता है। दोस्तों